Good morning, dear students. As you all know that from 5th of August your PT1 exams are starting. So we are going to do the revision this week. So let's start our revision. First we are going to revise the topic nutrition, that is the first life process. Life process, what are the life processes? Life processes are the processes that are required for the continuity of our life, and in that process first is the nutrition. So first of all, what is nutrition? In this video I am just sharing the few important points, the points that are important from the exam point of view. So please watch the video carefully. So what is nutrition? Nutrition is the process of taking in nutrients in the form of food and then utilizing it. How utilizing it? By digesting it, absorbing it, and by utilizing it and then removing the waste products from the body. So this is the process of nutrition. Now we have studied the two modes of nutrition. Two modes of nutrition are autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition, as the name suggests, auto means self. So the organisms, or we can say the green plants, they can make their food by their own by the process of photosynthesis. Such mode of nutrition in which organisms can make their food by their own is known as autotrophic mode of nutrition, and the other one is heterotrophic mode of nutrition in which organisms are dependent on others for their nutrition, जिसमें organisms दूसरों के ऊपर dependent होते हैं अपना nutrition लेने के लिए. That mode is heterotrophic mode of nutrition. Now heterotrophic mode of nutrition is further divided into three types, that is saprophytic, parasitic and holozoic. Saprophytic mode of nutrition in which organisms derive their food from the dead and decaying organic matter. डेड और डिके जो प्लांट्स और एनिमल्स से जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड डिराइव करते हैं, दैट आर सैप्रोट्रॉफ्स, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक. एग्जाम्पल इंक्लूड्स फंजाई. Next mode of nutrition is parasitic mode of nutrition. Parasitic mode of nutrition is that mode in which organisms live in the body of other organisms and derive their nutrition from its body without killing it. मीन्स पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरों की बॉडी के अंदर रह के अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं और उनको मारते नहीं हैं, विदाउट किलिंग इट. मतलब जिनकी बॉडी में पैरासाइट्स रहते हैं, दैट आर नोन एज दी होस्ट ऑर्गेनिजम्स, उनको होस्ट कहते हैं. एग्जाम्पल इंक्लूड दी टेपवर्म. टेपवर्म आपने सुना होगा, हमारे जो पेट में कीड़े होते हैं, दैट आर दी पैरासाइट्स. वो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, हमसे ही हमारा ब्लड सक करके वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. ओके. Next mode of nutrition is holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition is that mode of nutrition in which organisms take in the food inside the body and there the digestion of food takes place. Body के अंदर वो whole food लेते हैं और body के अंदर digestion का process होता है, उसको body के अंदर digest करते हैं. That is the holozoic mode of nutrition, and this mode of nutrition is can be seen in human beings and many other animals also. Mostly the organisms perform this type of nutrition, holozoic mode of nutrition. Now there are various steps of holozoic mode of nutrition, that how the organisms take in food and then digest it and the waste products are removed from the body. So first step is ingestion. Ingestion means intake of food. फूड जो सिंपल माउथ से हम बॉडी के अंदर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन. नेक्स्ट कम्स डाइजेशन. व्हाट इज डाइजेशन? द complex food particles are broken into the smaller food particles. That process is known as digestion. Digestion का मतलब क्या होता है? खाना पचना. तो खाना पचने में क्या होता है, जो फूड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है वो स्मॉलर सिंपलर सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. दैट इज नोन एज द डाइजेशन. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसमें से न्यूट्रिएंट्स ब्लड एब्जॉर्ब करता है. न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन इज द हैपन्स हियर इन द एब्जॉर्प्शन.
नाउ एसिमिलेशन, जो ब्लड ने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करे हैं उनका यूटिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन फॉर दी एनर्जी, एनर्जी के लिए यूटिलाइजेशन करना या सेल्स को रिपेयर करने के लिए यूटिलाइज करना, अलग अलग प्रोसेसेस हैं यूटिलाइजेशन के. सो दैट कम्स अंडर एसिमिलेशन. लास्ट वन इज इजेशन. Egestion, the unwanted waste products gets removed by the body by the process of egestion. So these are the 5 steps. First is ingestion, then digestion, absorption, assimilation, and last one is egestion. Now coming to nutrition in plants first. I have told you here in autotrophic mode of nutrition that green plants are able to prepare their own food by the process of photosynthesis. photosynthesis के process से green plants अपना food खुद prepare करते हैं. And how they prepare their food? By utilizing the sunlight and chlorophyll. In the presence of sunlight or chlorophyll, food prepare करते हैं. So the reaction is, and the food prepared is in the form of glucose. C6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6CO2 plus 6H2O, means carbon dioxide and water combines in the presence of sunlight and chlorophyll to give the glucose plus oxygen and water. कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में and oxygen is liberated. So what are the steps of photosynthesis? We have learned that there are basically 3 steps in the photosynthesis. First one is absorption of light energy by the chlorophyll. सबसे पहले क्या होता है, green plants light को absorb करते हैं. और green plants में ऐसा क्या है जो light को absorb करता है? That is the chlorophyll pigment जो है वो light को absorb करता है. सेकेंड प्रोसेस है द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना. एंड देन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर मीन्स वाटर का ब्रेक डाउन होना. ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. वॉच द प्रीवियस वीडियो केयरफुली, उसमें मैंने पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है. Okay, and the third step is reduction of carbohydrate, reduction of this carbohydrate to the glucose. Oxidation होता है, basically oxidation ही reduction reaction होता है. reduction reaction क्या होता है? removal of oxygen and addition of hydrogen. जो यहाँ hydrolysis होता है, यहाँ पर जो hydrolysis हुआ था सेकेंड स्टेप में, हाइड्रोजन जो रिलीज हुआ था वो ऐड होके यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्म करता है. सो बेसिकली दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ कमिंग टू द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दीज आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है लीव्स में? Chloroplast. Chloroplast is the site of photosynthesis. Remember these points. ये जो छोटे छोटे points हैं इनको याद रखना है. Now this was all about the nutrition in plants. Now coming to the human digestive system. Nutrition in humans. कैसे human beings जो हैं food लेते हैं और उनका digestion होता है. Nutrients कैसे absorb करते हैं. So human digestive system includes mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. These are the organs of the human digestive system. इन organs की human digestive system में requirement होती है. Glands associated with human digestive system. कौन कौन से glands use human digestive system में role play करते हैं? Salivary glands, gastric glands, liver, pancreas and intestinal glands. सबका अपना अलग अलग फंक्शन है.
Please, again I am saying, if you are not thorough with the topic, please watch the previous videos ज़रूर देखें जहाँ पर मैंने न्यूट्रिशन का प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। मैंने एक अलग वीडियो बनाया है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का, उसमें पूरा डिटेल्ड प्रोसेस है। हेयर आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यहाँ मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका जस्ट ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ओके, so next we have to learn the role of HCl, mucus, bile, liver, pancreas and large intestine। मैं एक बार ब्रीफ में आपको बताती हूँ कि कैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे हम खाना फर्स्ट माउथ से इनटेक करते हैं, कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स में खाना पहुँचता है और फिर जो अनवांटेड मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव होता है। सबसे पहले अवर डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। माउथ से हमारा फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो हम खाना इनटेक करते हैं, माउथ में क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। दैट सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट्स द सलाइवा एंड सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन एंजाइम। Salivary amylase is the enzyme that is present in saliva secreted by the salivary glands. What does the saliva do? Saliva क्या करता है? Saliva breaks the starch into sugars. तो सबसे पहले जो आपका डाइजेशन होता है वो स्टार्च का होता है और कहाँ होता है, माउथ पे होता है। Now from mouth the food comes from mouth food comes through the esophagus to the stomach। माउथ से फूड नेक्स्ट आपका स्टमक में आता है थ्रू द ईसोफेगस और वी कैन से फूड पाइप। फूड पाइप को ही ईसोफेगस कहते हैं। अब फूड कैसे आता है स्टमक तक? विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द प्रोसेस नोन एज पेरिस्टालसिस। व्हाट इज पेरिस्टालसिस? द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप की जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जो फूड को डाउनवर्ड पुश करते हैं। तो ये आपका प्रोसेस पेरिस्टालसिस कहलाता है जो फूड को माउथ से स्टमक तक लेकर आता है। नाउ इन स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट दैट सिक्रीट्स द गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन्स 3 components, that is HCl, pepsin and mucus। What is the function of these 3? HCl का क्या function है? HCl is the acid, hydrochloric acid that provides the acidic medium। acidic medium provide करता है एक तो, and it kills the germs present in the food। food में जो germs present है, जो हम खाना खाते हैं उसके साथ जो germs आ गए हैं उसको kill करने का काम करता है HCl। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, बट द पेप्सिन वर्क्स ओनली इन द एसिडिक मीडियम। पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है और ये एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है? HCl प्रोवाइड कर रहा है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? म्यूकस का क्या फंक्शन है? Mucus prevents the inner lining of the stomach from the harmful effect of HCl। क्योंकि HCl एक एसिड है तो हमारे स्टमक को डैमेज कर सकता है, तो इसलिए स्टमक जो है वो म्यूकस से, जो स्टमक की लाइनिंग है वो म्यूकस प्रेजेंट रहता है। वहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस होता है म्यूकस जो स्टमक को HCl के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। Now intestinal glands are also present। intestinal glands present होते हैं stomach में। and now from stomach the food comes to the from stomach the food comes to the small intestine। small intestine में आया जो remaining हमारा undigested food था। Now small intestine is called the site of complete digestion। small intestine को site of complete digestion कहते हैं। यहाँ पे आपका हर एक चीज़ का digestion complete हो जाता है। अब small intestine it receives the secretions of 2 glands। 2 glands के secretion receive करता है ये, एक तो liver का और एक pancreas का। liver secrete bile and pancreas secrete the pancreatic juice। liver bile secrete करता है और pancreas pancreatic juice secrete करता है। bile का क्या function है? it helps in the emulsification of fats। fats के digestion में bile help करता है।
और पेनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है? पेनक्रियाटिक जूस का ये फंक्शन है कि इसमें 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन अगेन प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है और लाइपेज फैट्स की डाइजेशन में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहाँ पर इंटेस्टाइनल एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। व्हाट डू दीज इंटेस्टाइनल एंजाइम्स डू? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इंटेस्टाइनल एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को किस में ब्रेक डाउन करता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है एमिनो एसिड्स में, एंड फैटी एसिड्स फैट्स को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सो हेयर वी कैन से दैट डाइजेशन इज कंप्लीट। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो गया, फैट्स का डाइजेशन हो गया, प्रोटीन्स का भी कंप्लीट डाइजेशन हो गया, और स्टार्च का डाइजेशन माउथ में हो गया था। सो दैट इज व्हाई दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन को इसलिए साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स, जो आपका रिमेनिंग अनवांटेड फूड है अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट है, जो फूड हमारा अनवांटेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आया है, उससे जो फूड में जो वाटर प्रेजेंट है लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करता है, मेकिंग द फूड सॉलिड। फूड को सॉलिड फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नाउ नेक्स्ट ऑर्गन इज रेक्टम। रेक्टम में आपका जो फूड है लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में आया, जहाँ फूड टेम्परेरीली स्टोर होता है until it gets excreted out with the help of the organ called anus. जब तक कि एनस से फूड सिक्रीट, अनडाइजेस्टेड अनवांटेड मटेरियल सिक्रीट नहीं हो जाता, तब तक वो रेक्टम में स्टोर रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। किस तरीके से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करता है, ह्यूमन एलिमेंट्री के नाल फंक्शन करता है और ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन होता है। इसके लिए मैंने आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनवाया था, ताकि आपको हर एक ऑर्गन का, वहाँ पे सबके रोल भी लिखवाए हैं मैंने आपको। प्लीज़ गो थ्रू दैट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन रिवाइजिंग दिस टॉपिक। बहुत इजी आपको लगेगा अगर आप उस फ्लो चार्ट को अच्छे से लर्न कर लेंगे। So students, this is all for today. Tomorrow we will going to revise the next topic, that is respiration. Till then, please do watch the video carefully, read the notes, read the NCERT books. As you know that the question paper will be in the format of multiple choice question. MCQ के form में होगा, one question is given and there will be 4 options and you have to correct the you have to tick the correct option. MCQ के फॉर्म में होगा, इसलिए आपको डेप्थ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। NCERT बुक एंड नोट्स को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर रेफ़र करें प्लीज़। टिल देन हैव अ गुड डे एंड एन्जॉय।